سب سے پہلے میں خدا باپ بیٹے روح القدس کے لیے شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں بھائی ہارون کے لیے، پادری طارق صاحب کے لیے کہ جنہوں نے آج اپنے اس خوبصورت چرچ میں ویلکم کیا ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ آج وہ کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے؟ آپ کا اقرار ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جیسا تم اعتقاد رکھو گے ویسا تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر آج آپ اس اعتقاد سے یہاں پر آئے ہیں کہ میں آج برکت کو پانا چاہتا ہوں، میں آج اپنا معجزہ لینا چاہتا ہوں، میں آج بحالی پانا چاہتا ہوں، تو یقیناً خدا آپ کے ایمان کے مطابق آج کرنے والا ہے. آمین. سو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے. سو میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیے گا. سلاطین کی پہلی کتاب پرانے عہد نامے میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر ہم 40ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. سو پڑھنے میں رہنمائی کوئی بھی کر سکتا ہے. سلاطین کی پہلی کتاب پرانے عہد نامے میں سے 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک. جی بھائی صاحب، پادری طارق صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ ضرور تلاوت خداوندی میں رہنمائی کریں. 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک. 30ویں 30. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ. میرے نزدیک آ جاؤ. یہ مین آف گاڈ کہہ رہا ہے، خدا کا خادم کہہ رہا ہے میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو اٹھا دیا گیا، تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھایا گیا تھا مرمت کیا. اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا، تیرا نام اسرائیل ہوگا. تیرا نام اسرائیل ہوگا. 12 پتھر لے، 12 پتھر لیے اور اس نے اس پتھروں سے خداوند کے نام کا اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی، جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی. اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا. جی آگے. اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوکھتی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو. جی. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ کیا. پھر اس نے کہا 6 بار کرو. سو انہوں نے 6 بار بھی کیا. اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا. پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا. اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا. اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، جی. آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. اور میں تیرا بندہ ہوں. اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. جی. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے. اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس اپنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا. اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. سو میرے عزیزو، جس طرح ہم نے جی بھر کر خداوند کی پرستش کی، ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا. سو خدا نے
सब नामों से ज्यादा इज्जत और जलाल अपने कलाम को दिया है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और जलाल किसको दिया है? अपने कलाम को। और जो आज का हमारा मजमून है वो है मज़बा की आग। आज का हमारा मजमून क्या है? मज़बा की आग। जो मेरे अजीजों, मज़बा वो जगह है जहां पर कुर्बानी की जाती है। मज़बा वो जगह है जहां पर हालतें बदल जाती है। मज़बा वो जगह है जहां पे खुदा की हजूरी उतरती है। मज़बा वो जगह है जहां पर खुदा अपनी आग को जारी करता है। मज़बा वो जगह है जहां पर खुदा शिकस्त को फतह के अंदर तब्दील करता है। मज़बा वो जगह है जहां पर खुदा बात करता है। और मेरे अजीजों, कलाम खुदा का मुताला करें तो यहां पर मेरे अजीजों, मर्द दुआ, मर्द खुदा एलिया, 450 नबी, जो बाल के 450 नबी हैं, उनको एक बड़ा चैलेंज करता है। बड़ा चैलेंज कौन सा है? वहां पर 2 मजबे बनाए जाते हैं। अब मेरे अजीजों, एक मजबा जो है वो बाल का है और एक मजबा जो है वो खुदा का है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, एलिया उनको कहता है, तुम कब तक डावाडोल रहोगे? या तो बाल को खुदा मानो, या तो आसमान के खुदा को, या यहोवा खुदा को, इस्राएल के खुदा को खुदा मानो। और उसने कहा अब यहां पर 2 मजबे लगाए जाएंगे। पीछे मेरी आवाज आ रही? आपकी थोड़ा चाहता हूं। यहां पर 2 मजबे लगाए जाएंगे। एक मजबा किसका है? बाल का। किसका? अब मेरे अजीजों, आपको बताना चाहता हूं, ये लोग बाल की पूजा करते थे। बाल ये उनका आका, उनका मबूद था, उनका बुत था, उनका खुदा था। और ये समझते थे कि बाल ही हमारे लिए आसमानों से बारिश बरसाता है। वो समझते थे कि बाल ही हमारा खुदा है, यही हमें बच्चे देता है। वो समझते थे कि बाल ही हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन एलिया ने कहा बाल खुदा नहीं है। और मेरे अजीजों, वो एलिया के सामने आ गए, बाल के नबी उसके सामने आ गए। उन्होंने कहा तूने कैसे कह दिया कि ये खुदा नहीं है, हालांकि हम इसको खुदा मानते हैं। और मेरे अजीजों, वहां पर फिर एलिया ने कहा यहां पर 2 मजबे लगाए जाए और जिस मजबा पर आग आए उसका खुदा ही जिंदा खुदा होगा। और मेरे अजीजों, बाल के नबियों को कहा 450 नबी, कहां पर एक मैन ऑफ गॉड, एक मर्द खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं 450 जादूगर क्या, मैं कहता हूं हजारों के बराबर, लाखों के बराबर अगर जादूगरों के लश्कर खड़े हो जाए, अबलीस के लश्कर खड़े हो जाए, अगर एक मैन ऑफ गॉड है, अगर एक ऐसा मर्द दुआ है, मर्द खुदा है जिसका ताल्लुक मज़बा के साथ है, वो मुंह के बल गिरेंगे। यहां पे एलिया ने कहा तुम बर्रे को ऊपर रखो लेकिन आग नहीं देनी, तुम्हारा बाल आग बेचे। अगर बाल ने मज़बा पर आग बेच दी तो मैं भी इस्राएल के खुदा को छोड़ के तुम्हारे बाल को अपना खुदा मानूंगा। सो उन्होंने चैलेंज को कबूल कर लिया और चैलेंज इतना अहम उनके लिए हो गया, उन्होंने कहा कि हमारा बाल आग बेच सकता है। उन्होंने दुआएं करना शुरू कर दी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब बाल को पुकारना शुरू कर दिया कि बाल आग बेचे, ये कुर्बानी बाल की है, हम बाल के नबी हैं, हम बाल को खुदा मानते हैं, हम बाल को आका मानते हैं। और मेरे अजीजों, सुबह से लेकर शाम का वक्त होता जा रहा है, एलिया उनको चिढ़ा रहा है कि तुम्हारा बाल सो न गया हो। मेरी बहनों, तुम्हारा बाल सो न गया हो, तुम्हारा जो खुदा है वो सफर में ना हो, तुम और ऊंची ऊंची पुकारो, तुम और बुलंद आवाज से अपने खुदा को पुकारो ताकि वो आग को बेचे। और मेरे अजीजों, वो और पुकारने लगे और यहां तक कलाम खुदा के अंदर लिखा है उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया, छुरियों से जख्मी कर लिया, मुख्तलिफ सूरतों से लहूलुहान हो गए कि शायद हमारा बाल, हमारा खुदा हम पर तरस खाए। लेकिन सुन लीजिए, वो बाल महज बुत था, वो
सकता था, लेकिन फिर एलिया ने कहा अब रुक जाओ, अब देखो इस्राएल का खुदा तुम्हारे बाल ने एक चिंगारी मज़बा पर नहीं बेची, लेकिन ये मज़बा किसी इंसान का नहीं है, ये मज़बा ये कुर्बानी की जगह, ये खजूरी की जगह किसी बुत की नहीं है, किसी मबूद की नहीं है, बल्कि इस्राएल के खुदा की है। और उनको बोला जा रहा है कि तुम लोग पानी से भर दो इस जगह को, जो दरमियान बाद उसके गुलाई में जगह बनाएगी, उसके चुगिर्द पानी डाला गया और बर्रा ऊपर है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि मेरे अजीजों, शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, मैन ऑफ गॉड नजदीक आया। कहा कि किसके करीब आया? मज़बा के करीब आया। मज़बा वो जगह है जो खुदा की हजूरी जहां पे है। मज़बा वो जगह है जहां पर आग उतरती है। मज़बा वो जगह है जहां पर हालतें बदल जाती हैं। और जब वो मज़बा के करीब आता है और कहता है कि अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के खुदा आज मालूम हो जाए, आज मालूम हो जाए, ये नहीं कि कल मालूम हो, या बाल के पुजारी परसों बाद तुझे जाने, या बाल के पुजारी दिनों के बाद तुझे जाने। आज कब? आज सुनिए, आज मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। और मेरे अजीजों, जब ये दुआ कर रहे हैं, एलिया हाथों को उठाए हैं, आसमान के खुदा के आगे झुक गया है, हाथों को उठाए हैं कि खुदावंद तू आसमान से आग भेज। और सुन लीजिए, हमारा खुदा आग के साथ जवाब देता है, और वो खुद एक जलती हुई आग है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, आसमान खुल गया, बाल के पुजारियों की निगाह अब बाल की तरफ नहीं है, बल्कि आसमान की तरफ लगी हुई है कि आसमान से आग आ रही है। और लिखा है, आसमान से आग आई और मज़बा पर, कुर्बानी पर वो उतरी और उस पानी को चट कर गई। और लिखा है कि जब उन्होंने देखा तो वो मुंह के बल गिर पड़े, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि आसमान से खुदा की आग आ चुकी थी। और उन्होंने कहा, बेशक इस्राएल का खुदा ही यहोवा खुदा। हालेलुया, ये है खुदा का मज़बा। और खुदा का मज़बा, वहां पर उसने हालतें बदल दी, वहां पर साबित कर दिया कि अगर कोई इज्जत के लायक है, अगर कोई तमजीद के लायक है, कोई बाबा नहीं है, कोई पीर नहीं है, अगर इज्जत के कोई लायक है तो वो खुदा का बन रहा है, वो यहोवा खुदा है। और मेरे अजीजों, यहोवा खुदा ने आग को भेजा और वो मानने पर मजबूर हो गए कि इस्राएल का खुदा ही हकीकी खुदा है। आज चर्चिस के अंदर मज़बों के ऊपर खुदा की आग जब आती है तो मेरे अजीजों, लोग जानते हैं कि इस मज़बा पर खुदा है, इस चर्च में खुदा है, इस कलीसिया में खुदा का रूह है। और जहां पर खुदा का मज़बा है, वहां पर मेरे अजीजों हालतें बदल जाती हैं। कभी भी घर बैठे हालतें बदल नहीं सकती, कभी भी गैर मबूदों के पीछे भागने से हालतें बदल नहीं सकती। खुदा के मज़बा के पास हमारी हालतें बदल जाती हैं। जब आग आएगी तो बीमारियां भस्म होंगी, आग आएगी तो खुदा अपने आप को ज़ाहिर करेगा, आग आएगी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, आग आएगी तो गुनाह भस्म हो जाएंगे, आग आएगी तो उसकी तमाम इब्लीस की स्पिरिट हमारी जिंदगियों को, खानदानों को छोड़ना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस, आज लोग मज़बा के करीब नहीं आते। एलिया मज़बा के नजदीक गया। एलिया कहाँ गया? आज खुदा वो लोग ढूंढ रहे हैं जो मज़बा के पास आंसू बहाएं, मज़बा के नजदीक आके आंसू बहाएं, वो लोग खुदा ढूंढ रहे हैं। आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मज़बा के पास जाके आंसू बहाएं, हम मज़बा के पास जाकर खुदा की आग को लें ताकि वो लानतों को हमारी जिंदगियों से जुदा करे। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हन्ना जो है खुदा के मज़बा के पास क्या कर रही है? आंसू बहा रही है और क्या मांग रही है कि खुदावंद मुझे औलाद चाहिए। और मज़बा के करीब से हमारी हर जरूरत पूरी होगी। याद रखिए, जब मज़बा पर आग आएगी तब खुदा हमारी हर जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। और वो मज़बा से जुदा नहीं होती थी। लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको चर्च में बैठने का पता भी नहीं चलता। जी कदे चर्च से बैठे रहते, बैठे बैठे लड़ाई शुरू। चर्च में बैठे हैं, मज़बा के पास बैठे हैं,
तो हर तरह की बातें शुरू। ऐसे लोग कभी भी मजबा के सबक से बरकत नहीं पाएंगे, मजबा की आग को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले सकते। जो कलाम खुदा के अंदर अगर हम देखें तो मजबा की आग हमारी जिंदगी से डर खत्म कर देती है। ये एक बुज़दिल शख्स को सूरमे की तरह खड़ा कर देती है। जदाउन जो एक डरपोक शख्स था, बड़ा डरता था। सो मेरे अजीजों, उसने एक जबरदस्त काम किया। जबरदस्त काम क्या था? उसके बाप दादा ने गैर मबूदों के लिए मजबा बनाया था। गैर मबूदों के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे। और खुदा ने जदाउन को कहा, जदाउन उठ और मजबा के नजदीक चल। और जब मजबा के नजदीक गया तो बाल के मजबा को उसने जाके डाल दिया, रातों रात डाल दिया। और उस मजबा पर इस्राएल के खुदा के नाम की कुर्बानी चढ़ा दी। सो लोग उठे, लोगों ने पूछा ये मजबा किसने डाया है? सो बाद में पता चला कि जदाउन ने डाया। और मेरे अजीजों, कलामी खुदा के अंदर लिखा है जब मजबा ठा के आया तो खुदा की रूह उसके ऊपर नाज़िल हुई। जब खुदा का मजबा उसने मुकर्रर किया तो मजबा की आग ने उसको छुआ, खुदा की हजूरी ने उसको छुआ। और वो जो एक डरपोक बुज़दिल शख्स था, वो एक दलेर सूरमे की तरह खड़ा हो गया। एक कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, जंग के लिए नहीं कर रहा है। सो मजबा की आग हमें एक अच्छा वॉरियर बनाती है, दुआया जंगजू बनाती है। जो मजबा के पास रहते हैं मेरे अजीजों, वो दुआया जंगजू लोग हैं। जो मजबा से दूर रहते हैं वो मेरे अजीजों ऐसे हैं जैसे बाल के पुजारी। कभी भी उनकी दुआओं से आग नाज़िल नहीं होगी, कभी भी उनकी जिंदगियों पर आकरू की आग, आसमानी आग, खुदा की हजूरी की आग उन पर नहीं ठहर सकती। लेकिन जब मजबा के नजदीक रहते हैं, खुदा मजबा के करीब रहने वालों की हालतों को बदल देता है। जो मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो अब तो शुक्र है खुदा का, बहुत सारे लोग खुदा की इज्जत को जानते हैं। ये जो घरों में दिए जलाए जाते थे ना, ये रस्म दिए जलाने की बाल्मीक से चली थी। बाल्मीक जो है ये भी एक देवता था, जिस तरह बाल देवता है, बाल्मीक भी देवता था, बुत था। और इसकी वर्शिप में दिया जलाया जाता था। और मेरे अजीजों, पीछे चले जाए को 10-15 साल तो पेरेंट्स दिए जलाया करते थे। और वो ये रस्म, ये वर्शिप जो है कि बाल्मीक की याद में करते थे। और आज भी बड़ी सारी जगहों के ऊपर दिए जलाए जाते हैं। और ये वर्शिप बाल की वर्शिप है, बाल्मीक की वर्शिप है। भले वो जानते हैं या नहीं, लेकिन ये वर्शिप गैर देवता की है, उस खुदा की है जो हाथ से बना हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, इब्लीस के मजहबों को जो अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से ढा देता है, उसकी जिंदगी के ऊपर खुदा की आग आती है। और जब खुदा की आग आती है तो वो आग उसको पाक कर देती है। और जब खुदा की आग आती है तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी और खानदानों को बदल के रख देती है। जिंदगियां गुनाह के अंदर नहीं रहती, खानदान गुनाह के अंदर नहीं रहते, खानदान नाफरमानी की हालत में नहीं रहते, खानदान जहालत की हालत में नहीं रहते, बल्कि बदल जाते हैं, क्योंकि मजबा की आग बदल के रख देती है। बहुत सारे ऐसे बाबरकत लोग हैं कि जो अपने घरों के अंदर भी खुदा के मजबा के लिए जगह देती हैं। अपने घरों के अंदर उन्होंने कोई ना कोई ऐसी जगह महसूस की होती है जहां पर वो घुटने टेकते हैं कि खुदावन, ये आल्टर है, ये प्रेयर आल्टर है, ये ऐसा आल्टर है, ये ऐसा मजबा है जहां पर हम आंसू बहाते हैं, जहां पर हम तेरे हुजूर में झुक जाते हैं, जहां पर तेरी हजूरी में प्रेयर करते हैं। जिन घरों में खुदा के मजबे होते हैं ना, उन घरों में कभी इब्लीस का मजबा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर खुदा का मजबा है वहां पर खुदा की आग है। और जहां पर खुदा की आग है वहां पर खुदा की फतह है। वहां पर लोग कभी हारे हुए नहीं होते, बल्कि फतहमंद लोग होते हैं, खुदावंद का नाम ऊंचा करने वाले लोग होते हैं। कभी उनकी जिंदगियों में खुदा का नाम गिरता नहीं है, नीचे नहीं जाता, बल्कि खुदा का नाम ऊंचा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने घरों के अंदर खुदा के मसले कायम किए होते हैं, प्रेयर ऑल्टर कायम किए होते हैं। सो आज जरूरत है हर घर
जिस तरह हम पहले डिसाइड करके रखते हैं कि मैंने एलडी कहां पे लगानी है, किस जगह पे लगानी, किस जगह पे सूट करेगी। कभी ये भी सोचा है कि मैं खुदा का मस्बा अपने किस कमरे के अंदर बनाऊं, कहां पे मैं बनाऊं जहां पे मैं खुदा के हुजूर में बैठूं, कैसी वो जगह होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर एक कोने में भी खुदा को जगह दे देना, प्रेयर के लिए बना दे, वही दुआया मस्बा आपकी बरकत का सबब बन सकता है, वही दुआया मस्बा आपके लिए बहाली का सबब बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस घर में दुआया मस्बे नहीं है ना, उस घर के अंदर लड़ाइयां हैं, उस घर के अंदर बेबरकती है, उस घर के अंदर नाफरमानी है, उस घर के अंदर बेटे नशे की लत के अंदर पड़े हैं, उस घर के अंदर बदरू गिरफ्तार नजर आएंगे, उस घर के अंदर हर तरह की तरीकी नजर आएगी। लेकिन जिन घरों के अंदर खुदा के मजबे हैं, कभी भी वो लोग आपको हारे हुए गुनाह के अंदर दबे नजर नहीं आएंगे, बल्कि जलाल से भरे हुए नजर आएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जलाल को जाहिर करने के लिए जो खुदा का है, जो खुदा का जलाल है, उससे मामूर होने के लिए हमें दुआया मजबे खड़े करने होंगे, ताकि मजबा की आग हमारे घर में जब वो हमारे बच्चों को छुए, हमारे घर के सिस्टम को छुए, हमारे घर के किचन के सिस्टम को छुए, हमारे घर के अर्निंग के सिस्टम को छुए, जो आमदनी का सिलसिला है, आग उसको टच करे, ताकि किसी जगह पे बेबरकती न ठहरे, किसी जगह पे लानत न ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे घर में भी कभी अबलीस का मजबा होता था। वो ऐसे कि मेरे जो दादाजी थे वो बजाते खुद एक गैर मबूद को मानने वाले थे, और वो खुद भी पीर थे, लंबे लंबे उनके बाल थे, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक अबलीस का मजबा हमारे घर में रहा, तब तक ना प्रोस्पेरिटी घर के अंदर आई, ना खुशहाली, ना बरकत, ना फरमाबरदारी, ना इज्जत, ना अनाज, कुछ भी बरकत जो है कि हमारे घराने के अंदर ना ठहरे, बल्कि लड़ाई झगड़ा, हर किस्म की कमी। इवन के उस मोहल्ले के अंदर जहां पे हम रहते, सबसे लो तरीन फैमिली हमारी थी, सबसे लो, सबसे जीरो फैमिली हमारी थी। लेकिन मेरे अजीजों, एक औरत अगर खुदा परस्त है, एक औरत खुदा परस्त है, तो वो खुदा तरस नस्ल को जन्म देगी। अगर घर में एक औरत भी खुदा परस्त है, अगर एक औरत भी खुदा तरस है, वो खुदा तरस नस्ल को जन्म देगी। तो मेरे अजीजों, जब मेरे बाबा की शादी हुई तो मेरी जो वालिदा है वो दुआ करने वाले थे, और जब वो घर आए उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो दियों की रोशनी, फुलझड़ियों की खुशबुएं महसूस होती हैं, नजर आती हैं, तो यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। और इवन के बहुत बार लड़ाई झगड़े के बायस डिवोर्स तक बात चली गई कि नहीं रखना, इस औरत को नहीं रखना, ये दुआ करने वाली है, ये हमें डिस्टर्ब करती है, हमने नहीं रखना, इसको नहीं रखना। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं भाई इधर ही रहना, अगर खुदा ने मुझे भेजा ना तो खुदा को कोई बड़ा मकसद है। बड़ी मारे खाई उन्होंने, ठीक है, बड़ी तकलीफें उठाई, झुकी के बराबर उनकी इज्जत की जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला रखा, मुझे खुदा ने भेजा यहाँ पे और खुदा कोई बड़ा काम करेगा। और यहां तक भी वक्त आया कि उस अबलीस के मजबे को इतना खतरा पड़ गया कि ये औरत मुझे डालने का सबब बनेगी, ये औरत मेरे वजूद को खत्म करने का सबब बनेगी। आज के दौर में बहुत सारी औरतों को ना कुछ भी नहीं समझा जाता। और छो पहली हवा ने भी की कीता, बंदे नु फसाया, आदम नु गुनाह चे फंसा दिया। सो आज बहुत सारे मर्द ये कहते हो आज दी हवा भी गल्लां च आउंदी है तो की कर दी है, फंसा देती है, वो फिसल जाती है गुनाह में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, औरत मसाली भी है, हन्ना जैसी मसाली औरतें हैं, दबूरा जैसी मसाली औरतें, मुकद्दसा मरियम जैसी मसाली औरत है। सो मेरे अजीजों, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी वालिदा ने एक मन्नत खुदा की हजूरी में मानी कि खुदावंद ये तो नस्ल दर नस्ल बात ये चलती आ रही, मेरे खुद जो बाबा है वो पीर के कदमों में झुक के सिजदा करते थे,
पाँव को चूमा करते थे। इस कदर वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके थे। और उन्होंने कहा खुदावंद ये कैसे होगा, खुदावंद एक बेटा दे और मैं वो बेटा मैं तुझे दूंगी। शायद खुदावंद उस बेटे की वजह से तू इस खानदान पर क्या करे, रहम करे और इस घर के अंदर अबलीस के मजबे की जगह खुदा का मजबा लग जाए, ताकि यहाँ पर भी बहाली आ जाए। और जब ये बात मेरे बाबा को पता चली, दादाजी को पता चली, उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता। जिस जगह पर हम बैठे हैं, कल को अगर कोई हमारा बेटा होगा, हमारी नस्ल में पोता होगा, वो हमारी जगह पर बैठेगा, मीन्स के अबलीस के मजबा की वर्शिप करेगा जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद खुदा ने मुझे इसीलिए इस जगह पर भेजा है ताकि अबलीस का मजबा क्या किया ढाया जाए, उसको बर्बाद किया जाए, अबलीस के आइटम को बर्बाद किया जाए। खैर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, खुदा ने उनको बेटा भी दिया, बड़े खुश हुए। दादा इस बात पे खुश हुए मेरी सीट पर बैठने वाला आ गया है, और वालिदा इस बात पर खुश हुए कि मैं भी इसके बाइश खुदा क्या करेगा, अपना मजबा घर के अंदर खड़ा करेगा और मेरी हेल्प होगी, मेरे साथ कोई खड़ा होगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं होगा। जब ये बात उनको पता चली, हमारे घर में खादमों को रोका जाता था, बेइज्जत करके निकाला जाता था, गालियां दे के निकाला जाता था, उन बहस तकरार करके निकाला जाता था कि भाई ये कराना पादरियों वाला कराना नहीं है, ये कराना दुआ वाला कराना नहीं है, बराए मेहरबानी आप यहाँ पर ना आया करें। सो मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होती थी कि यहाँ पर खादमों को भी रोका जाता है, ताकि खादमों के वसीला से यहाँ पर कोई काम ना हो जाए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस घर में, जिस फैमिली में, जिस जगह पर अगर खादमों के लिए दरवाजे बंद किए जाते हैं, तो सुन लीजिए उसी जगह पर खुदा खादमों को जन्म देगा। सो मेरे अजीजों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात चलती गई, और मेरी जो वालिदा है, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने ये बताना शुरू किया कि बेटा एक बात याद रखना कि मैंने तुझे खुदा के लिए वक्त किया है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 10-12 साल का था, मैं अपने दादा के साथ दरबार पे भी जाता था, वो मुझे लेकर जाते थे, वो मुझे ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, आपने जाना है, जहाँ पे वो दिया जाके चलाते थे, मैं उस जगह पर जाया करता था। लेकिन एक जगह पे ऐसा भी मुकाम आया, मुझे वो बात याद है कि सामने पीर साहब बैठे हुए उनके, और दादा ने जाके उनको सजदा किया, मुझे भी कहते हैं सजदा करो, और मैं ना सामने खड़ा गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि गैर मबूदों को सजदा। वो बड़ा गुस्से से मुझे देखने लगा बाबा कि ये बच्चा मुझे सजदा नहीं कर रहा। सो दादाजी ने कहा इसके हिस्से का मैं करता हूँ, मैं तो भी करूँ। मैंने ये कहा कि उनको बताया, मैंने कहा आज के बाद आपने वहां पे नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे अजीजों, ऐसा भी वक्त आ गया कि हमने दुआ के लिए खादमों को बुलाना करना, फिर इसके अलावा दुआ के लिए जाना करना, वापसी पर आना तो हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाना घर का, कि जहां पे आप लोग गए थे वहीं पे चले जाओ, क्योंकि आपके लिए घर में जगह। हमने बाहर दरवाजे पर खड़े रहना, बहनें साथ है, माँ साथ है, दरवाजा खटखटाते रहना, फिर अंदर से ख्याल आना कुछ देर बाद के चलो खोल ही देते हैं, लेकिन दोबारा दुआ पे नहीं जाना। लेकिन फिर हमने ऐसे करना, हमने फिर निकल जाना, हमने फिर चले जाना, और ये सिलसिला कार चलता रहा। और एक वक्त ऐसा आ गया मेरे अजीजों कि जब मैंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया कि मैं दादाजी आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं दुआ करूंगा। और फिर तकरीबन 8वीं क्लास के अंदर मैं पढ़ता था, उम्र मेरी तब एज होगी 13-14 साल, और जब दुआ हम लोग कर रहे थे, सभी बच्चे थे जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे सारे बैठ के दुआ कर रहे हैं, और इस कदर खुदा का रूह कुदस जारी हुआ है कि आसपास के लोग छतों के ऊपर चढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पे रोने की आवाजें आ रही हैं, यहाँ पे ऊंची लोग रो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि शायद कोई मर गया या कोई ऐसा वाकया हो गया है। लेकिन लोग, घर वालों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लोग दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसी दुआ है कि जिस दुआ ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उनको देखने के लिए आ जाए। शायद गैर ज़बानों के अंदर दुआ हो रही थी, और जब ये बात घर वालों को पता चली, वो और परेशान हो गए। और फिर मेरे अजीजों, वो ख्वाब, वो बात जो मेरी माँ ने कही थी, खुदावंद बेटा तू मुझे देगा और वो मैं तुझे दूंगी,
اور ایک خدا کے خادم ہمارے گھر میں، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آج کے بعد یہ بیٹا خدا کا ہے اور یہ بیٹا خادم بنے گا، اس کو میں آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں. اور جب میرے عزیزوں یہ بات انہوں نے کہی، پھر اس کے بعد جب روح القدس ملا، ہم نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے دعا کر سکیں، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا جہاں پہ ہم بیٹھ رہتے تھے، پھر باقی سارا کھلا ایریا تھا. پھر ایک کمرہ بنایا گیا جہاں پر دادا جی دیا جلاتے تھے. پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہو ہم یہیں پر بیٹھ کے دعا کیا کریں، کیونکہ یہیں پر ہم نے ابلیس کے مذبح کو کیا کرنا ہے، ڈالا ہے اور خدا کا مذبح بنانا ہے. اور میرے عزیزوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میرے دادے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد میرے عزیزوں دیے کا جلانا بند کیا گیا، جو ابلیس کا مذبح تھا اس کو ہم نے ڈھایا، اس کو ہم نے وہاں سے ہٹایا. وہاں پر ہم نے کپڑا بچھا کر، نیچے کچا فرش ہوتا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر ہم نے پریئر کرنا شروع کر دی. اور میرے بابا جو دوسروں کے قدموں میں جا کر سجدہ کرتے تھے، اب ہم نے پریئر کرنا شروع کر دی ہے. اب میرے عزیزوں ہمارا 0 لیول پہ گھر تھا، گلی سے 5 فٹ نیچے تھا، ہر کوئی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. لیکن جب خدا کا مذبح، آلٹر، پریئر، دعا یا مذبح ہمارے گھر میں بنایا گیا، تو میرے عزیزوں ایک خدا کے خادم کراچی سے ہے، انہوں نے کہا بھئی اگر آپ کے ساتھ خدا ہے تو جب میں بعد میں آؤں 1 سال بعد تو آپ کا گھر بنا ہونا چاہیے. 1 سال بعد، 1 سال کے اندر 8-9 لاکھ اکٹھا کرنا بہت مشکل بات ہے، ایک کمانے والا ہو اور گھر بھی بن جائے. لیکن دعائیا مذبح اگر گھر کے اندر ہے، آپ ایک گھر نہیں بلکہ 10 گھر بنا سکتے ہیں. ہاللیلویہ! کیونکہ دعائیا مذبح جہاں پہ ہے وہاں پہ حالتیں بدل جائیں گی. اور میرے عزیزوں ہماری فیملی وہ جو خادموں کو اپنے گھر سے نکالنے والی تھی، خدا نے کر میں سے ہی خادم کو پیدا کر دیا. ہاللیلویہ! اور ہمارے گھر میں جب دعائیا مذبح بنا، حالتیں بدل گئی. میرے والد صاحب جو بپتسمے کے خلاف تھے، جو میرے عزیزوں نجات کے خلاف تھے، دعا کے خلاف تھے، پھر میرے عزیزوں جو ہم سے بحث کرتے تھے باری بار، پتہ بھی نہیں چلا. کسی خادم سے ملے، ٹیچ کیا انہوں نے، ہمیں بتایا نہیں کہ یہ نہ کہیں جی اب کیسے بپتسمہ لے لیا. انہوں نے بھی نجات پائی، خدا کا شکر ہے. اب 1-2 نہیں بلکہ ہماری ساری فیملی نجات یافتہ ہے، یہ دعائیا مذبح کے بعد سے. اور 1 سال کے بعد جب خدا کے خادم آئے، ہمارا اچھا گھر بھی بن گیا. اور انہوں نے گواہی دی کہ میں مان چکا ہوں کہ خدا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. یہ دعائیا مذبح کی برکت ہے. اگر آج آپ کا گھر نہیں ہے، پریشان نہ ہو، آپ 10 گھر لے سکتے ہیں. کلام میں لکھا مجھ سے مانگ اور میں تجھے قوموں کی میراث دوں گا. مانگ مجھ سے، مانگ میں تجھے قوموں کی. جب آپ دعائیا مذبح کے قریب رہیں گے تو مذبح کی آگ آپ کو چھوتی جائے گی. آپ جس چیز کو چھوئیں گے اس چیز کے اندر خدا کی حضوری، خدا کی رہنمائی ہوگی، کبھی آپ ناکام نہیں ہوگی. سو میرے عزیزوں اپنے گھروں کے اندر، اپنے چرچز کے اندر ہمیں مذہبوں کے قریب رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کے مذبح کے قریب رہیں گے سب کچھ چینج ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے. جو بندہ گھر میں چینج نہیں نہ ہو سکتا وہ بھی چینج ہو جائے گا. اگر آپ مذبح کے سامنے آنسو بہانے والے ہیں، اگر آپ مذبح کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں، اگر آپ مذبح کے سامنے روزہ رکھنے والے ہیں، بدل جائیں گی. آمین. سو میرے عزیزوں سب سے بڑا جو دنیا کا مذبح ہے وہ کوہ کلوری پر بنا، جہاں پر میرا اور آپ کا یسوع مسیح قربان ہوا. اور اس مذبح کے قریب جب ہم سوچ ہی لیتے ہیں، دھیان لگا لیتے ہیں، تو میرے عزیزوں زندگیاں بدل جاتی ہیں. جب ہم اس لہو کی قدر کرتے ہیں، شفائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب صلیب پر لٹ کے یسوع کو محسوس کرتے ہیں، اس پین کو محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوا، تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع تبدیل کرنے والی روح ہے، تبدیل کرنے والا خدا ہے. سو مصرف بیٹا وہ جس نے سارا کچھ باپ سے لے لیا اور جا کر اڑا دیا دوسرے ملک کے اندر. لیکن جب سوروں کو چلانے لگا، سوروں کے درمیان جب اس نے مذبح کھڑا کیا اور سوچا کہ میرا باپ کے گھر کے اندر جو نوکر ہے وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہوں. سو میرے عزیزوں اگر ہم غلط رستوں پر چل پڑے ہیں، اگر اسی جگہ پر ہم خدا کی حضوری، خدا کا مذبح مانگ لے تو حالت بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی. ہم پیچھے آ سکتے ہیں. اور وہ پیچھے آیا اور وہ کیا ہو گیا؟ بحال ہو گیا. سو آج گناہ
के मजबे, नशे के मजबे, लानतों के मजबे, उनको ढाकर खुदा के मजबा के पास आने की जरूरत है। आमीन। आइए आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है खुदा की खादिम से पादरी तारक साहब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे।